Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. So today is unit number 5, Regulators and Power Supply, and today's topic is Load and Line Regulation. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है यूनिट नंबर 5 का, दैट इज रेगुलेटर्स एंड पावर सप्लाई, और आज का लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक है लोड और लाइन रेगुलेशन. So before start our today's lecture, first of all we will see what are the different learning outcomes. So the first learning outcome is you will able to know about the power supply, then you will able to know the regulator, and you will able to know the types of voltage regulator. So these are the three learning outcomes of our today's topics. So introduction. The batteries are often shown on a schematic diagram as source of DC voltage, but usually actual DC voltage source is a power supply. तो जो schematic diagram में जो DC voltage दिखाई देता है वो एक्चुअल में DC voltage source होता है, जो कि power supply जिसको हम बोलते हैं. So there are many types of power supply. Most are designed to convert high voltage AC mains electricity to a suitable low voltage supply for electronics circuits and other devices. A more reliable method of obtaining DC power is to transform, rectify, filter and regulate an AC line voltage. तो जो reliable method है to obtain DC power, तो ये कौन सा मेथड है? To transform, to rectify, to filter and to regulate an AC line voltage. A power supply can be broken down into a series of blocks, each of which performs a particular function. So, power supply. So a group of circuits that convert the standard AC voltage, that is 120 volt 60 Hz, provided by the wall outlet to constant DC voltage. तो ये हमारा power supply हो गया. Then second is transformer. So a device that step up or step down the AC voltage provided by the wall outlet to a desired amplitude through the action of magnetic field. तो ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है इसका जो ब्लॉक डायग्राम है जिसे यहाँ पे दिखाया है. So the first is power supply, then second is transformer, then rectifier, filter, IC regulator and load. तो ये जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है तो इसमें हमने देखा पावर सप्लाई जो 120 वोल्ट RMS है, देन ट्रांसफार्मर है. ट्रांसफार्मर ये स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन भी हो सकता है. देन रेक्टिफायर, तो अभी रेक्टिफायर फिल्टर आगे की स्लाइड में देखेंगे. सो दिस इज पावर सप्लाई एंड ट्रांसफार्मर. Now the third is rectifier. So a diode circuits that converts the AC input voltage to a pulsating DC voltage. तो रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट AC टू DC, AC input voltage to pulsating DC voltage. So this is the function of rectifier. Then the pulsating DC voltage is only suitable to be used as a battery charger, but not good enough to be used as a DC power supply in a radio, stereo system, computer and so on. तो ये जो आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिलता है ये सूटेबल किसके लिए होता है? सिर्फ बैटरी के लिए, बैटरी चार्जर के लिए, एंड नॉट गुड इनफ टू बी यूज्ड एज, और ये अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है फॉर और एज अ डीसी पावर सप्लाई इन रेडियो, स्टीरियो सिस्टम एंड कंप्यूटर एंड सो ऑन. देन there are two basic types of rectifier circuits. First is half wave rectifier and second is full wave rectifier. सेंटर टैप एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर के दो बेसिक टाइप्स होते हैं. पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर,
और दूसरा बेसिक टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें भी सेंटर टैप आता है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर आता है। So, in summary, a full wave rectified signal has less ripple than a half wave rectified signal and is thus better to apply to a filter. तो जो समराइज करेंगे हम हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टैप और फुल ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर को, तो क्या होता है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है या फुल वेव रेक्टिफायर का जो रेक्टिफाइड सिग्नल होता है उसमें रिप्पल जो है वो कम रहती है देन हाफ वेव। हाफ वेव के कंपैरिजन में फुल वेव में जो रिप्पल आता है वो कम रहता है। So therefore it is better, मतलब full wave rectifier is better to apply to filter. Then filter, तो filter का function देखेंगे, a circuit used to reduce the fluctuation in the rectified output voltage or ripple. This provides a steadier DC voltage. तो filter का function क्या है, एक ऐसा सर्किट जो फ्लक्चुएशन रिड्यूस करता है, कहाँ से, रेक्टिफाइड जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसमें जो फ्लक्चुएशंस होता है उन फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करने का काम फिल्टर सर्किट करता है। और वो क्या प्रोवाइड करता है फिल्टर, इट प्रोवाइड्स अ स्टेडियर डीसी वोल्टेज। देन नेक्स्ट इज रेगुलेटर, तो जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें देखो रेगुलेटर दिखा रहा है, आईसी रेगुलेटर। तो हमारा पावर सप्लाई हो गया, ट्रांसफार्मर भी हो गया, रेक्टिफायर हो गया और अभी हमने फिल्टर देखे, अब देखेंगे रेगुलेटर। सो रेगुलेटर का फंक्शन देखेंगे, अ सर्किट used to produce a constant DC output voltage by reducing the ripple to negligible amount, one part of power supply। तो रेगुलेटर का फंक्शन क्या है, ये एक ऐसा सर्किट है जो कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है या कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और क्या रिड्यूस करके करता है, बाय रिड्यूसिंग द रिपल ये टू निग्लिजिबल अमाउंट। तो जो रिपल होते हैं आउटपुट में, डीसी आउटपुट में जो रिपल होते हैं उसको निग्लिजिबल अमाउंट में रिड्यूस करके कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देता है। यह फंक्शन हो गया रेगुलेटर का, और उसी को बोलेंगे हम वन पार्ट ऑफ पावर सप्लाई, एक प्रकार का वो पावर सप्लाई ही हो गया, मतलब कांस्टेंट डीसी आउटपुट पावर सप्लाई ही हो गया वो। देन regulator, that is Zener diode regulator. So for low current power supplies, a simple voltage regulator can be made with a resistor and a Zener diode connected in the reverse. तो जो Zener diode regulator है उसमें जो लो करंट पावर सप्लाईज होते हैं उसमें क्या होता है, अ सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो मेड बन होता है विथ रेजिस्टर और Zener डायोड से, जो कनेक्ट होता है इन रिवर्स कंडीशन में। देन Zener डायोड्स, so Zener diodes are rated by their breakdown voltage Vz and maximum power, that is Pz. It's typically 400 milliwatt or 1.3 watt। तो देखो यहाँ पे दिया है Zener डायोड, ठीक है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। देन दिस इज सर्किट, दिस इज इनपुट वोल्टेज, दिस इज फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे Zener डायोड कनेक्टेड है और यहाँ पे करंट लिमिटिंग के लिए रेजिस्टर है जिसको बोलेंगे हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। सो इसका जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर वो कितना होता है, 400 मिली वॉट और 1.3 वॉट होता है, ठीक है। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन, अभी हम वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे। सो टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन आर लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसके दो टाइप्स है, पहला है लाइन रेगुलेशन और दूसरा है लोड रेगुलेशन। So the purpose of line regulation is to maintain a nearly constant output voltage when the input voltage varies। तो जो लाइन रेगुलेशन होता है उसका क्या पर्पस होता है, वो मेंटेन करता है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जब हमारा इनपुट वोल्टेज वेरीज होता है तब, बराबर है। मतलब हमारा जो इनपुट वोल्टेज वेरीज हो रहा है तब जो आउटपुट वोल्टेज जो हमें चाहिए वो कांस्टेंट रहने के लिए उसका मेंटेन कौन करता है, लाइन रेगुलेशन। Then the purpose of load regulation is to maintain a nearly constant output voltage when the load varies। अब जब लोड वेरीज होता है, मतलब हम क्या देख रहे हैं, लोड रेगुलेशन का पर्पस। तो जब लोड वेरीज होता है तब जो आउटपुट वोल्टेज जो फ्लक्चुएट होता है
वो फ्लक्चुएट न होते हुए उसको कांस्टेंट रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट, हम क्या यूज़ करते हैं, लोड रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन क्या मेंटेन करता है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जब इनपुट वोल्टेज वेरीज होता है, और लोड रेगुलेशन क्या करता है, टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जब लोड वेरीज होता है। लोड रेगुलेशन में लोड वेरीज होता है तो लो आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करता है लोड रेगुलेशन, और लाइन रेगुलेशन क्या करता है, जब हमारा इनपुट वोल्टेज वेरीज होता है तब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखने का काम हम लाइन रेगुलेशन करता है। Then first is line regulation. So a change in input line voltage does not significantly affect the output voltage of a regulator within certain limits. तो हमने अभी देखा line regulation का function. Then this is the diagram for line regulation. ये V in हो गया, यहाँ पे voltage voltmeter है, then voltage regulator यहाँ पे connect है, फिर से यहाँ पे voltmeter, और ये हमारा V out। अगेन डिक्रीज और इंक्रीज इनपुट वोल्टेज, अब यहाँ पे देखो इनपुट है, ये वोल्टेज रेगुलेटर, देन दिस इज वी आउट, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो दिस इज लाइन रेगुलेशन। सो नाउ लाइन रेगुलेशन। सो लाइन रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। तो लाइन रेगुलेशन का फार्मूला क्या हो गया, या डेफिनेशन क्या हो गई, द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, मतलब डेल वी आउट डिवाइडेड बाय डेल वी इन इंटू 100%। तो ये हो गया फार्मूला फॉर लाइन रेगुलेशन। सो लाइन रेगुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, दैट इज लाइन रेगुलेशन इक्वल टू डेल वी आउट डिवाइडेड बाय डेल वी इन। डेल वी आउट मतलब आउटपुट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, और डेल वी इन मतलब चेंज इन इनपुट वोल्टेज। डेल का मतलब है चेंज इन इंटू 100। सो दिस इज लाइन रेगुलेशन फार्मूला. So the line regulation can be calculated using the following formula. So line regulation is equal to del V out by V out into 100% divided by del V in. तो ये हो गया हमारा लाइन रेगुलेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज into 100 divided by change in input voltage. So this is a line regulation formula. Now load regulation. So a change in load current due to a varying RL has practically no effect on the output voltage of a regulator within certain limits. Now this is the diagram for load regulation. ठीक है, V in, then voltage regulator, then current meter and V out, और यहाँ पे change in load resistor जो vary कर सकते हैं। ठीक है, then again V in, voltage regulator, increase और decrease current हम, ठीक है, दिस इज करंट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, दिस इज लोड रेजिस्टर, ठीक है, जो वैरी होता है एंड नो चेंज. Now the load regulation can be defined as the percentage change in the output voltage from no load, that is NL, to full load, that is FL. So load regulation is equal to VNL minus VFL divided by VFL into 100%, where VNL is the no load output voltage and VFL is the full load output voltage. So sometimes power supply manufacturers specify the equivalent output resistance, that is R out, instead of its load regulation. तो ये सर्किट डायग्राम हो गई, VTH that is VNL, RTH that is R out, and RL, then V out equal to VNL into RL by V R out plus RL. Then RFL equal the smallest rated load resistance, then VFL equal to, VFL is VNL into RFL divided by R out minus RFL. Then rearrange the equation. So अब ये लोड रेगुलेशन कैलकुलेट का फार्मूला है, ठीक है, तो VNL इक्वल टू VFL इंटू आर आउट माइनस RFL डिवाइडेड बाय RFL. तो यहाँ पे रीअरेंज करके फाइनली क्या मिल रहा है, लोड रेगुलेशन इज R out डिवाइडेड बाय RFL इंटू 100%. नाउ द प्रोग्राम आउटकम्स, हम PO मैपिंग देखेंगे अभी। तो PO1, PO3, PO4, PO6 और PO7, ये 5 POs आज के लेक्चर के टॉपिक्स को मैप कर रहे हैं. सो दिस इज PO मैप. सो थैंक यू.